Good evening, students. How are you? I hope you all will be fine and welcome to semester 2. So now today we will do the very first chapter that is in your semester 2nd syllabus, that is chapter number 9, the simple tenses. Alright. Simple tenses we have done in Zoom classes also. The simple tenses in the previous class we have done, and today I am sending you the video. So tenses are of three types: present tense, past tense and future tense. Okay, and further we have four parts of every tense, like present tense, present indefinite, past indefinite, future indefinite. Then present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, then future perfect tense. Okay, in the same way, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. So now this chapter is about simple present tense, simple tenses. So today we will do only simple tenses: simple present, simple past and simple future. Now come to present indefinite, simple indefinite. First of all, we will do the rules. Positive. In positive sentence is also called affirmative. But we use subject, first form of verb, SODS plus object. And along with he, she, it and singular we use SODS, and I, we, they, you plural we don't use SODS. In the negative we use subject plus do does not plus first form of verb plus object. He, she, it and singular we use does, and I, we, they, you plural we use do. Now come to interrogative. Do does plus subject, first form plus object. Alright. तो जहाँ पर आपका he, she, it और singular होगा, he, she, it and singular we use S और es with it, और जहाँ पर I, we, they, you plural होगा we don't use S और es. और नेगेटिव में सेम चीज, जहाँ पर he, she, it singular होगा वहाँ does आ जाएगा, I, we, they, you plural के साथ हम क्या लगाते हैं, do लगाते हैं. Now come to these sentences. See the I go home, negative I do not go home, interrogative do I go home question mark. अब यहाँ पे I है तो I के साथ do आ गया. We go home, we do not go home, do we go home. अब यहाँ पे we है तो you do आ गया. You go home, you do not go home, do you go home. He goes home, he does not go home, does he go home. अब यहाँ पे देखो he है तो does आ गया, she है तो does, it तो does. ठीक है, तो he, she, it और singular मीन्स वन थिंग, एक वचन. I, we, they, you प्लूरल के साथ हम SODS नहीं लगाते हैं, और नेगेटिव में उनके साथ हम do not लगाते हैं. तो ये तो था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो था रूल्स. ठीक है, एंड आई हैव गिवन सेंटेंसेस. नाउ वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं. हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत होती है, दैट आई गेट अप एट 8 AM, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, आई गो टू बेड एट 9 PM. जो काम हमारी हैबिट होती है तो उसको हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि जो ट्रूथ इज हैज़ बीन एक्सेप्टेड एवरीवेयर, साइंटिफिकली वो ट्रूथ है या पूरे यूनिवर्स में उसको ट्रू माना जाता है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सच है, सच्चाई है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट. फ्यूचर इवेंट, जो अब फ्यूचर का हिस्सा बनने वाले हैं, जैसे दी ट्रेन लीव्स एट 6 PM, कि ये ट्रेन इतने बजे जाती है, हमेशा इतने बजे ही जाती है ट्रेन, तो वहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. ठीक है. अब रिपीटेड एक्शन जहाँ पे हम ऑलवेज, एवरीडे, ऑफन, सम टाइम, नेवर, ये वाले वर्ड आते हैं. जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ही नेवर टेल्स अ लाई. ओके, शी ऑफन गेट्स इरिटेटेड. ठीक है. समटाइम्स आई गो टू दी मार्केट. तो जहाँ पर शी गोज टू स्कूल एवरी डे, तो जहाँ पे ये वर्ड्स आ जाएंगे वी यूज
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एसओरियस लगाते हैं, और ही शी इट सिंगुलर के साथ एसओरियस, आई वी दे यू प्लूरल के साथ एसओरियस नहीं आता। सेकेंड थिंग नेगेटिव डू डस, आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू, ही शी इट सिंगुलर के साथ डस। इंटेरोगेटिव में सिंपल डू डस पहले आ जाएगा देन सब्जेक्ट। तो ये तो था आपका सिंपल प्रेजेंट। अब आ जाओ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को भी हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सी दिस। अब सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब पहले हम रूल कर लेते हैं। ये देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डिड के साथ आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वैसे सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बट जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा देन वी यूज डिड, और अलोंग विद डिड वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंटेरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो थे रूल्स। नाउ वी विल डू सेंटेंसेस। देखो आई वर्कड, आई डिड नॉट वर्क, डिड आई वर्क, यू वर्कड। ये देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यू के साथ आ गया यू डिड नॉट वर्क। अब यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। डिड यू वर्क, वी वर्कड, वी डिड नॉट वर्क, डिड वी वर्क, दे वर्कड, दे डिड नॉट वर्क, डिड दे वर्क। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको यहाँ पर कोई भी, जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज की कंफ्यूजन थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिड सबके साथ आपने लगा देना, चाहे वो आई वी दे यू है, चाहे ही शी इट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, डिड ही आता है। तो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा नॉट वाला, तो वहां पे आपने डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। हम सिंपल पास्ट कहाँ यूज करते हैं, जो काम खत्म हो चुका है, फिनिश्ड। जैसे यू पास्ट क्लास 6 इन 2020, ये काम फिनिश हो चुका है कि 2020 में आपने 6th क्लास पास आउट की है, ठीक है। एंड शी डाइड इन 1985, कि वो कब मरी थी, 1985 में। तो जो काम फिनिश हो चुका है, या आई डिड MA इंग्लिश इन 2010, कि मैंने MA इंग्लिश कब की थी, 2010 में। मोस्टली टाइम गिवन होता है कि काम कब हुआ था। नाउ कम टू सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत इजी है। शैल विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देखो ये रूल मैंने लिखे हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कोई चक्कर नहीं ऐसा कि कहाँ पे शैल विल आप कहीं भी देखो। वैसे तो वी यूज आई वी शैल, अलोंग विद आई वी यूज शैल। हम शैल लगाते हैं आई और वी के साथ। बट नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा नहीं है। आप जब पक्का डिटर्मिनेशन होता है कि मैं ये काम करके ही रहूंगी, आई विल डू दिस, तो वहां पे हम आई के साथ विल भी लगा देते हैं। जब आप डिटर्मिन्ड हो कि ये काम होना ही है। जहाँ पे आप डिटर्मिन्ड नहीं हो तो वहां हम शैल लगा सकते हैं, ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ पे है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी। आई विल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तो यहाँ पे हम शैल भी लगा सकते हैं कि पक्का नहीं मैं तुमसे मिलूंगी। आई शैल नॉट मीट यू, शैल आई मीट यू या विल आई मीट यू, दोनों सही होते हैं अगर हम लगाते तो बहुत ईजी है। शैल विल लगाना है फ्यूचर इंडेफिनिट, और सिंपल फ्यूचर एक ही बात है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस, ही शी इट सिंगुलर के साथ एस और ईएस, आई वी दे यू प्लूरल के साथ नो एस और ईएस। नेगेटिव में डू डज आ जाएगा, आई वी दे यू प्लूरल के साथ डू, ही शी इट सिंगुलर के साथ डज लगाना है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव का मतलब जहाँ पे नॉट आ जाता है, इंटेरोगेटिव एट द एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बहुत सिंपल है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस आपके 3 है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप you must have understood all the tenses. In Zoom class we will discuss thoroughly. Thank you so much and have a nice day.